तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल हुदूद में 3 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। केसीआर ने अलवाल, गुड्डियानारम, फ्रूट मार्केट और एरागड्डा में तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तामीर के लिए भूमि पूजा की। इस मौके पर रियासती वुज़रा, अवामी नुमाइंदे और ओहदेदार मौजूद थे। केसीआर ने कहा कि टिम्स कॉरपोरेटर तर्ज पर तामीर होंगे। 16 स्पेशलिटी और 15 सुपर स्पेशलिटी शोबे होंगे। शहर के चारों तरफ अस्पतालों की तामीर से आवाम को सहूलत होगी। हर एक हॉस्पिटल 13.71 लाख मुरब्बा फीट के रकबे पर मुहित होगा। कुत्तापेट फ्रूट मार्केट में तामीर होने वाले हॉस्पिटल के लिए 900 करोड़, अलवल हॉस्पिटल के लिए 857 करोड़ और एरागड्डा हॉस्पिटल की तामीर के लिए 882 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। अलवाल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए 28.41 एकड़ अराजी मुख्तस की गई है, जिस पर G+5 फ्लोर की बिल्डिंग तामीर की जाएगी। गुड्डियानारम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए 21.36 एकड़ अराजी मुख्तस की गई है, जिस पर G+4 10 फ्लोर की बिल्डिंग तामीर की जाएगी और एरागड्डा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए 17 एकड़ अराजी मुख्तस की गई है, जहां पर G+4 10 फ्लोर की बिल्डिंग तामीर होगी। हर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 1000 बेड्स पर मुश्तमिल रहेगा। इन अस्पतालों में तमाम अक़साम के सुपर स्पेशलिटी तिब्बी खदमात दस्तयाब रहेंगी। तिब्बी तालीम के लिए PG स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी नशिस्तें, नर्सिंग, पैरामेडिकल कॉलेजेस भी दस्तयाब रहेंगे। ఏదో చిన్న దవాఖాన కట్టారు ఇక్కడ టిమ్స్ హాస్పిటల్ అంటే తెలంగాణ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్, ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ ఎట్లా ఉంటుందో అట్లాంటి దవాఖాన ఇక్కడ వస్తూ ఉన్నది। ఇక్కడ మీకు దాదాపుగా 16 స్పెషాలిటీ 15 సూపర్ స్పెషాలిటీలలో బ్రహ్మాండంగా మీకు ఇక్కడ వైద్యం అందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది। కిడ్నీ వ్యాధి కావచ్చు, గుండె వ్యాధి కావచ్చు, ఊపిరితిత్తుల వ్యాధి కావచ్చు, మరొకటి కావచ్చు, అన్నిటికి కూడా ఇక్కడ సౌకర్యం ఉంటుందని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా। 100కు 100% ప్రభుత్వ ఖర్చుతోనే పేదలకు కార్పొరేట్ స్థాయిలో ఫ్రీగా ఉచితంగా వైద్య సేవలు అందుతాయని కూడా మీ అందరికి తెలియజేస్తా ఉన్నా। దక్షిణ భాగంలో అక్కడ గచ్చిబౌలిలో ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకున్నాం। అదేవిధంగా ఇలా చెస్ట్ హాస్పిటల్లో పశ్చిమ భాగంలో అక్కడ ఒక టిమ్స్ హాస్పిటల్ వచ్చింది। అదేవిధంగా తూర్పు భాగంలో సుధీర్ రెడ్డి గారి కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎల్బీ నగర్లో గడ్డియానారం ప్రాంతంలో అక్కడ కూడా ఈ రోజే నేను ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా ఉత్తర భాగంలో హైదరాబాద్కు ఉత్తర భాగంలో మనకి ఇక్కడ నేను నిల్చున్న చోట మీ జాగాలో మీ కంటోన్మెంట్లో ఈ స్థలం మనం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది। అంటే హైదరాబాద్ నలుదిక్కులా కేవలం గాంధీకో, ఉస్మానియాకో, నీలోఫర్కో పరిగెత్తాల్సిన అవసరం లేకుండా ఎక్కడికక్కడనే జనాభాకు వైద్య సేవలు అందించడానికి ఈ 4 సేవలు కూడా మనం తెచ్చుకున్నాం। ఇందులో 1000 పడకలతోని ఈ దవాఖానాలు స్టార్ట్ అవుతాయి, ప్రసూతి కేంద్రాలు కూడా ఏర్పడతాయి, చిన్నపిల్లల జబ్బులకు కూడా నయం చేస్తారు। అదేవిధంగా నిజాం ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్లో మరొక 2000 పడకలు కూడా అదనంగా మనం బ్లాక్ శాంక్షన్ చేసుకుంటా ఉన్నాం। మొత్తం హైదరాబాద్ నగరంలో 6000 బెడ్స్ను బ్రహ్మాండమైనటువంటి ప్రతి బెడ్ కూడా ఆక్సిజన్తో ఉండే విధంగా, ఇందులో దాదాపుగా 1000-1500 వరకు ICU బెడ్స్ ఉండే విధంగా ఈ ఆసుపత్రుల నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది। वहीं TRS पार्टी के कयाम के 21 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस सिलसिले में हाईटेक सिटी माधोपुर के HICC में TRS पार्टी की यौम तासीस तकरीब मुनक्किद होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 3000 मंदोबीन को शिरकत की दावत दी गई है। तेलंगाना के 12,769 देहात शहरों के 3600 मकामात पर पार्टी परचम लहराया जाएगा। यौम तासीस के पेश नजर साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के हुदूद में ट्रैफिक तहदीदात नाफिज कर दी गई हैं। HICC के करीबी इलाकों के अलावा कुत्तागुड़ा, हाईटेक सिटी, साइबर टावर्स, आईकिया, रोटरी, गच्ची बावली जंक्शन पर ट्रैफिक तहदीदात नाफिज कर दिए गए हैं। इन इलाकों में मौजूद दफातर में काम करने वाले मुलाजमीन के काम के औकात में भी तब्दीली का मशवरा दिया गया है। सुबह 9 बजे ता 11 बजे, इसी तरह शाम 4 बजे ता 7 बजे तक इन इलाकों में ट्रैफिक तहदीदात नाफिज रहेंगी। Years of formation in the Novotel, where Honorable Chief Minister KCR ji would be addressing the party's leadership. The focus is on
the 11 resolutions which Honorable Chief Minister KCR ji has initiated, brainstormed after sessions, and tomorrow those the future course of TRS's politics, and particularly being in the government of Telangana, it's totally digital there. There will be barcode system. Each delegates till the districts, through the district presidents, we have handed over them their entry passes. The car passes also have been given. So no one has to come and do the manual registration. It's purely digital. Every entry, every barcode also will go into the register. By noon, we will get the members who have participated too. The number is 3,600 to 3,800 of leaders, elected representatives, state committees, district presidents and mandal party presidents. तेलंगाना के रियासती वजीर केटीआर ने कांग्रेस और बीजेपी पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने मुल्क की आवाम से जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। जब हुकूमत नाकाम हो जाती है तो गैर अहम मुद्दों पर बहस होती है। जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। साहब ने कहा कि 2022 तक किसान का इनकम डबल कर देंगे। अब किसान के तकलीफ डबल हो गए मेरे हिसाब से तो। और मोदी साहब ने कहा कि 2022 तक हर नागरिक को, हर शहरी को घर मिलेगा। मेरे हिसाब से तो किसी को नहीं मिला। और मोदी साहब ने ये भी कहा था कि 2022 तक बुलेट ट्रेन आ जाएगी। उन्होंने ये भी कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगी। और उन्होंने ये भी कहा था, बहुत कुछ कहा था उन्होंने, कि काला धन वापस लाएंगे और 15 लाख डिपॉजिट करेंगे। कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आज हिंदुस्तान की जनता को ये तय करना चाहिए, ये जो दोनों पार्टी है, जिसको एक पार्टी को 50 साल आपने दिया, दूसरे पार्टी को अपने 17 साल के करीब करीब दिया, तो इन दोनों ने क्या किया हिंदुस्तान के लिए, ये सोचना चाहिए। 45 ईयर्स में सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज हिंदुस्तान में है। 30 ईयर्स में सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन आज हिंदुस्तान में है। आज हिंदुस्तान का किसान बहुत नाराज़ है गवर्नमेंट से। आज सिलेंडर का दाम हो गया 1050 रुपया। इन बातों पे चर्चा नहीं होती। चर्चा होती है हलाल पे, हिजाब पे, चर्चा होती है हनुमान चालीसा पे, चर्चा होती है अन्य चीज़ों पे। ये डाइवर्शनरी टैक्टिक है। जब गवर्नेंस फेल हो जाता है तो पार्टी इन पावर जो है, खासकर बीजेपी, उन्होंने गोबल्स प्रोपेगेंडा, जो गोबल जानते हैं आप, उनका प्रोपेगेंडा वाला जो सूत्र है उसको पकड़ लिया उन्होंने और देश की जनता को गुमराह करने की, उनकी दृष्टि डाइवर्ट करने की कोशिश में लगे हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि हिंदुस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, गरीब देश है, चाहे कुछ भी कर ले। भाई मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है 2.9 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। एप्पल करके एक कंपनी है अमेरिका, उसका इकोनॉमी जो है, उसका साइज जो है 3 ट्रिलियन है। एक कंपनी एप्पल, हिंदुस्तान से बढ़िया उसका इकोनॉमी है। अब देश में चर्चा किस बात की हो रही है, इस बात को लेकर हमें बहुत दुख होती है। आज अगर आप हिंदुस्तान का माहौल देखें, जिस तरह इंस्टीट्यूशंस को मिसयूज़ और अब्यूज़ किया जा रहा है, वो सबसे शर्मनाक बात है। ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, इनको जिस तरह पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पे प्रयोग किया जा रहा है, ये सारा दुनिया देख रहा है। अगर आदमी बाहर है, कोई एमपी, उस पर केस लगती है, जब वो बीजेपी में शामिल हो जाता है तो केस गायब। ये सब दुनिया देख रही है। वैसी कोई सिचुएशन तेलंगाना में नहीं है। वहीं टीआरएस और कांग्रेस पार्टी में कोई फर्क नहीं है। टीआरएस कांग्रेस पार्टी की बी टीम है। टीआरएस कांग्रेस और एमआईएम बीजेपी से मुकाबला एक साथ खड़ी है। रियासत की आवाम बीजेपी के साथ है। आवाम तब्दीली चाहती है। आइंदा असेंबली इंतखाबात में तेलंगाना पर बीजेपी का कब्जा होगा, इस हवाले से इजहार ख्याल किया गया। Sure, joining Congress party, becoming a Congress leader, and having a dialogue and talks with KCR. In a way, he wanted the Congress party to make B team for TRS. So the Telangana people are clever enough to understand Congress and TRS are no different. Congress, TRS, Majlis, they sail in a single boat, and it made very clear that to face BJP, TRS alone या Congress alone cannot take on BJP in Telangana. So the people of Telangana wanted a change in the governance, the corrupt governance, the family rule, and even the dictatorial attitude of this TRS, to put an end to TRS. So people now understand that cannot be done by Congress not alone. So now people now looking towards BJP to put an end to this dictatorial attitude or rule in the Telangana,
now they come under the platform of BJP. So we have been telling from the day one, the Congress and TRS and Majlis are all one, they are no different. तो बीजेपी लीडर लक्ष्मण के आप इजहार ख्याल सुन रहे थे कि वो कांग्रेस और टीआरएस के हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। केसीआर हुकूमत ने विमेंस कॉलेज कोठी को अपग्रेड करते हुए विमेंस यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया है। इस सिलसिले में सरकारी सतह पर अहकाम जारी कर दिए गए हैं, जिसे एक बड़े फैसले के तौर पर देखा जा सकता है। महकमे तालीम के सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया ने जीओ नंबर 12 जारी किया है। ये रियासत की पहली विमेंस यूनिवर्सिटी होगी। हुकूमत ने नए शोबेजात, तदरीसी व गैर तदरीसी अमले की मंजूरी और इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की देने के लिए फंड्स भी जारी करने का ऐलान किया है। खवातीन को तालीम के मजीद मौके फराहम करने के मकसद से टीआरएस हुकूमत ने यूनिवर्सिटी के क़याम को क़तियत दी है। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 22 करोड़ रुपए मालियाती हीरोइन पकड़ी गई है। ये कार्रवाई डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुकाम ने अंजाम दी है। अहदेदारों ने एक खातून मुसाफिर के पास से 3.12 किलो हीरोइन जब्त की। इस खातून का ताल्लुक जनूबी अफ्रीका से बताया जा रहा है, जो कतर से बराह रास्त दुबई हैदराबाद पहुंची थी। और खातून के खिलाफ DRI हुकाम ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद खातून को अदालती तहवील में दे दिया गया है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आंध्र प्रदेश की अहम खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।